So good evening to everyone and welcome to More TV. And today I was just hearing someone saying कि oh ये topic तो बिल्कुल मेरे interest का है. And I think such kind of topics are always of help to everyone because though we do have a lot of knowledge, but थोड़ा बहुत और भी जो हमें पता लगे just adds on to all the information that we have, and maybe small things here and there do tend to help us in various things. So I'll just request everyone to mute themselves now. So to everyone who's joined in, good evening once again to all of you. So today we have with us Ms. Neetu Tyagi, who's come here as a guest speaker. So to let you all know about her, today I think the session by itself, the topic that she had given me was very interesting. Karo rog raho nirog. So that is something जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं. So today we are going to hear more from her about it. So telling you about her. So Neetu Tyagi, she's a yoga instructor who is also founder of the company Om Bliss Yoga Studio in Chhatarpur. She herself lives in Chhatarpur and has done her diploma certificate graduation in yoga from Uttarakhand Garhwal University. She has also given individual classes for about 4 to 5 years, post which she decided to reach more people and help them by opening her own yoga center, which is known as Om Yoga Bliss Studio. A yoga studio was her dream, and she has worked really hard to achieve her aim. She now provides home, online, prenatal, postnatal, kids, elders, and corporate yoga classes as well. She loves doing yoga and doesn't have many hobbies. Rather, she lives her dream by providing yoga classes to every age group and leads a simple life. She has cured many illnesses in a lot of people without any medicines and only with the magic of yoga. So she believes that if people are happy in the center, the feedback goes well. Hence, her efforts are to keep people happy and healthy and make them energetic while doing yoga classes. So Neetu, thank you so much for joining us here at on More TV, and we really hope to learn a lot from you today. And I hope after your session, though a lot of people already do a lot of yoga, but some of us who don't, like people like me, might just get motivated enough to start doing it. So and start living healthier. So over to you, and thank you for being here. Hello. Yeah, Neetu. Hello, ma'am. Yeah, hi, Neetu. Welcome to More TV. Thank you. Thank you so much. So over to you. So these are all our members of Moha Elder Care. All of them have been with us for the past year or so. Some of them have, of course, joined recently also, but they are like part of family. So looking forward to hearing from you. आज हमारा टॉपिक है करो योग रहो निरोग. तो जैसा मोस्टली लोग जानते हैं कि हम लोग डेली रूटीन में अपना कोई रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. तो मैं आज वही टॉपिक लूंगी कि आप योग करने से कैसे निरोग रह सकते हो और कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो. हाँ जी, सुन पा रहे. हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं. आपको सुन पा रहे हैं. ओके, तो आज मेरा टॉपिक यही है कि जब हमारी एक एज हो जाती है तो एज होने के बाद हमें कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज आते हैं और हम किन किन परेशानियों का सामना करते हैं. तो आज मैं आपको टॉपिक पे बताऊंगी कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हो अपनी हेल्थ में और किस किस चीज का ध्यान रख के अपने आप को हेल्थी बना सकते हो. ठीक है, तो हमारा जो ये शरीर है एक ही मशीन की तरह होता है, राइट. ये आप सब लोग जानते ही हैं कि एक मशीन की तरह काम करता है ना. जैसे कि हमारी एक उम्र चलती है तो हमारे शरीर में ना प्राणवायु होती है. जब तक ये प्राणवायु हमारे शरीर में रहेगी ये हमारा शरीर काम करेगा, पर हम लोग ये नहीं जानते इस प्राणवायु को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं. आप बताएंगे, आप कितने लोगों को पता है कि हमारे शरीर में प्राणवायु होती है जो हमारे शरीर में काम करती है? लोगों को पता है? आप जानते हो? ऑफ कोर्स पता है, सबको पता है, प्राणवायु पता है. ठीक है, तो इस प्राणवायु की वजह से ही हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो कमजोर होने लगता है.
जब जो हमारे खाने को नहीं पचा पाता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना नहीं पचा पाने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अब वो बीमारियां किस वजह से होती हैं वो मैं आज का टॉपिक हम इसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम अपने शरीर में खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ साथ हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग मोस्टली पानी पी जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना पच नहीं पाता है। जब खाना पचेगा ही नहीं तो उससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आके हमें घेर लेंगी, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो बहुत से लोगों की क्या आदत होती है कि वो खाना खाते हैं, खाना खाते के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें पानी पीने की आदत होती है। उन्हें पता है कि पानी नहीं पीना है, लेकिन उसके बाद भी वो पानी पीते हैं। तो हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए। और हमें कितने दिन का गैप करना चाहिए पानी में, कि जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद हमें 1 से 2 घंटे का गैप मैक्सिमम रखना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में एक खाना पचाने के लिए एक अग्नि होती है। जब हम खाना खाते हैं, उस खाने को के बाद जब हम पानी पी लेते हैं तो वो पानी हमारी उस अग्नि को शांत कर देता है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं पच पाता है। जब खाना डाइजेस्ट होगा ही नहीं तो आपके शरीर को एनर्जी कैसे मिलेगी, आप मुझे ये बताइए, है ना। यस यस हेलो बोलो बोलो आप। हाँ जी। तो अगर किसी को बीच में कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। जब हम मैं बताती हूँ कि हमारे शरीर में खाना नहीं पचने की वजह से जो बीमारियां होती हैं तो उसका हमें मेन ध्यान रखना है। तो वो खाना हमारा डाइजेशन कैसे होगा, ये हमें हमारा जो योगा है वो हमें डाइजेशन में मदद करेगा। तो हमें अपनी हेल्थ पे इसलिए योगा को ऐड करना चाहिए। जैसे हमारे लिए ब्रीथ जरूरी है, वैसे हमारे लिए योगा भी जरूरी है। जब हम योगा करेंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस जब हम खाना खाएंगे खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ठीक है। बस हमें मेन ध्यान ये रखना है कि हमें खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, ठीक है। पानी पीना है तो 2 घंटे के गैप के बाद पीना है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, जो है वात, पित्त और कफ। अगर हम एक एज के आने के बाद अपने इन तीनों चीजों को बैलेंस करके रखते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आती हैं। मोस्टली आपने देखा होगा जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर 14 साल की आयु तक, हाँ, तो जब आप अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखोगे तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो हमें इन 3 चीजों का हमें मेन ध्यान रखना है कि हम इन चीजों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हम इन्हें कैसे बैलेंस करेंगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होते हैं जिसमें पता चल जाता है कि आपका वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पता चल जाता है। लेकिन हमें एक एज के आने के बाद इन चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो समझती नहीं है कि तो पता ही नहीं है कि वात, पित्त, कफ ये चीज भी है हमारे शरीर में, या हमारी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, या हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये 3 चीज बैलेंस है तो आपको कभी बीमारियां आएंगी ही नहीं। तो हमें पहले इसे ध्यान रखने के लिए हम योगा बहुत जरूरी है। अगर आप योगा करोगे तो आपकी ये तीनों चीजें बैलेंस होंगी। अभी जैसे 50+ 40+ के लोगों को कौन कौन से आसन हम करा सकते हैं, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले ले लीजिए ताड़ आसन। ताड़ आसन करेंगे तो ताड़ आसन से आप बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे, जिसका सारा ही इफेक्ट आपके डाइजेशन सिस्टम पे आएगा। क्योंकि एक एज के आने के बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। जब खाना ही नहीं पचेगा तो मोस्टली बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग वाले पोजेस करेंगे। तो ताड़ आसन करेंगे। ताड़ आसन जब आप करेंगे तो उससे आपका सारा डाइजेशन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसे करने के बाद आपकी मसल्स एक्टिव होंगी। तो ये हमें अब कम से कम हमें 3 सेकंड 4 सेकंड तक करना है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर कि आपकी बॉडी कितना इसका स्ट्रेच कर सकती है, ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, नॉर्मली हमें ये आसन करने हैं। उसके बाद हमें करना है कटी चक्र आसन। जब भी आप चक्र आसन करेंगे तो इसका भी सीधा इफेक्ट। मैडम ये आसन करके तो दिखाते जाओ ना। ठीक है सर। होता है ताड़ासन, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करनी है, अपने हाथों को लेकर अपनी टोज पे आना है। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन, पैरों को ऐसे, ठीक है। ये कौन सा आसन है? पैरों में हाँ जी। मैक्सिमम नहीं ये कौन सा आसन कर रहे हैं आप? ये कटी चक्रासन है। अच्छा बताया नहीं ना आपने। ये कौन आसन है? ये कौन सा आसन है? कौन आसन है? कौन आसन? चलो कौन आसन से चलिए करिए। जी आपको
कोणासन होता है। कोणासन में पैर में गैप नहीं होता, टीचर आसन में पैर में गैप होता है। मैडम आपकी आवाज कट रही है। इनहेल करते हुए जाएंगे, एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। ये आप 3 सेट कर सकते हैं, 10 टाइम्स 3 सेट। आप सुन पा रहे हैं? दोनों हाथ अपनी कमर के पास रखेंगे, अपनी कमर को रोटेट करेंगे 10 टाइम्स। ये कमर रोटेशन 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम कर सकते हैं भद्रकोण आसन। भद्रकोण आसन में आपका सारा जो है हमारी थाइस इफेक्ट आता है, इनका सारा जो आपकी थाई स्टिफ होंगी वो स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, आपके जॉइंट्स पेन स्टिफ होंगे और वो थोड़े आपको उसमें रिलीफ मिलेगा आपके जॉइंट्स पेन में। अगर जब आप भद्रकोण आसन करते हैं उनमें इनहेल करते हुए पैर ऊपर जाएंगे, एक्सेल करते हुए डाउन होंगे आपके पैर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा चाइल्ड पोज। जब आप चाइल्ड पोज करेंगे तो वो आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसका सारा इफेक्ट आपके नर्वस सिस्टम पे आएगा, आपकी स्पाइन स्मूथ होगी उससे। इसके बाद हम आते हैं अपने भुजंग आसन पे। ठीक है, भुजंग आसन के लिए हम लेट जाएंगे सीधे, लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए हम उल्टे लेट जाएंगे। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखेंगे, फिर अपनी चेस्ट को अप करेंगे, तो वो हमारा होता है भुजंग आसन। भुजंग आसन का सीधा इफेक्ट आता है आपकी स्पाइन पे। ठीक है, वो आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करेगी। इसके बाद आते हैं हम शलभ आसन पे। दोनों हाथ अपनी थाइस के नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे और वहीं पे होल्ड करेंगे। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, आपकी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने पवन मुक्त आसन पे। जिन्हें गैस की प्रॉब्लम है या जॉइंट्स पेन है वो इस पवन मुक्त आसन को करेंगे। इनहेल करते हुए अपनी नाक अपनी घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे, एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। जिनके शरीर में बात तो ज्यादा बढ़ जाती है ये उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, इसके बाद जब हम ये थोड़े से आसन कर लेंगे, अपने योगा कर लेंगे, तो उसके बाद हम आते हैं प्राणायाम पे। तो हमें जब भी प्राणायाम करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि हम प्राणायाम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है हमारी या नहीं हो रही है। क्योंकि प्राणायाम बिना ब्रीदिंग के ठीक से नहीं करोगे तो उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम करते हैं कपालभाति। ठीक है, मैं कपालभाति आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, सीधे बैठ जाएंगे, इनहेल एक्सेल। ये हम कपालभाति करेंगे।
जब आपको लगता है कि आप इसे कर रहे हो, पेट में दर्द होने लगे या थोड़ा आप नहीं कर पाए, तो फिर डीप ब्रीथ करेंगे हम 3 बार, गहरी सांस लेंगे, इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को बीपी हाई की प्रॉब्लम है या पेट में कोई परेशानी हो चुकी है, पहले से ही ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, तो वो लोग इसे नहीं करेंगे, कपालभाति को। उसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। जो अनुलोम विलोम है वो हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए ही मोस्टली वैसे होता है, ठीक है। उसे हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड से ब्रीथ करेंगे, राइट साइड से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सहेल। आपकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है आप उतना कर सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में सीधी कमर करके बैठ जाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये भी अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी हम डीप ब्रीथ करेंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे, ब्रीथ करेंगे, करते हुए ब्रीथ को आउट करेंगे। इन प्राणायाम से आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी ब्रीथ की कैपेसिटी बढ़ेगी। जिन लोगों को ब्रीथ में प्रॉब्लम है मोस्टली उन लोगों को ये ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। मैम, जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो उसके कुछ आसन और है? वज्र में बैठना मुश्किल। हाँ मैम, अगर वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वो भद्रकोण आसन कर सकते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं। वो बताइए जरा एक सेकंड। एक मिनट आपके लिए। अगर वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं ना, अपने दंड यस, ओके, पकड़ेंगे, कमर सीधी, इनहेल क्योंकि मोस्टली वज्रासन में वही लोग नहीं बैठेंगे जिन्हें जॉइंट्स पेन होगा, ठीक है। लेकिन ये जॉइंट्स पेन वालों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। Thank you very much for allowing me to ask her one question. I wanted to ask her कि योगा का मतलब क्या है, कि योगा किस चीज के लिए होता है? What is प्राणायामा? प्राणायामा की डेफिनेशन क्या है? What is श्वास प्रवास? जो श्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं और उसके लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? I want to ask, थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बताएं मैडम। प्रैक्टिकल तो हम बाद में करेंगे, पहले थ्योरी बताएं कि योगा है क्या, उसके कितने अंग हैं, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम के बारे में मैंने इनको बता दिया, अब मैं योग के बारे में इनको मैं बता रही हूँ, ठीक है। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग हमारे युज, संस्कृत का एक युज शब्द है, उससे मिलके बना है योग, उसी से निकल के हमारा ये योग आया है, ठीक है। हमारे इन्होंने पूछा है अष्टांग योग। अष्टांग हमारे 8 नियम है।
अष्टांग आप योग में बोलते रहिए, आप कंटिन्यूअसली बोलते रहिए, वी कैन हियर हाँ, यू। अष्टांग योग में हमारे 8 नियम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, ध्यान, समाधि। ये हमारे अष्टांग योग के 8 अंग हैं। जी मैं समझ। स्वर्णा जी पूछिए। वैसे आप बता रहे कि हाई ब्लड प्रेशर के उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए, वैसे डिजीज जो होता है उसको भी रेमेडी है विथ योगा। जैसे जिनके हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको शीतली आसन, शीतल ऐसा करके करते हैं ताकि शरीर में ठंड आता है, वो ब्लड प्रेशर कम हो। जीभ निकाल के, हाँ, वो जीभ निकाल के करते हैं। दैट इज द मेडिसिन, दैट इज द रेमेडी। कुछ प्रॉब्लम है, योगा फिर भी करना चाहिए, बट थोड़ा सोच के करना चाहिए कि ये आसन। जिनको बीपी हाई है ना, उन्हें अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो उन्हें आप अनुलोम विलोम करा सकते हो, ठीक है, चंद्रभेदी प्राणायाम करा सकते हो, शीतकारी करा सकते हो, शीतली प्राणायाम करा सकते हो। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा जब उनका बीपी हाई होता है। और कोशिश करने की बीपी हाई में उन्हें आसन ना ही कराएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्राणायाम से ही उनकी बीपी पे थोड़ा फोकस करा जाएगा और बीपी को थोड़ा नॉर्मल लाया जाएगा। हाँ, तो दैट मीन्स अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ फिर भी हम कर सकते हैं। जैसे आपने बताया ना, कुछ प्रॉब्लम तो होता है सबके शरीर में अभी इसमें। प्रॉब्लम इन द सेंस था कि अगर किसी को बीपी हाई है तो वो ये नहीं, कपालभाति, उन्हें नहीं पता ना कि मुझे कपालभाति करना है। मैंने तो बता दिया, लेकिन हर किसी को नहीं पता ना बीपी के हाई में हम कपालभाति कर सकते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम उन्हें नहीं करना है, ठीक है, और एकदम फ्लो में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। हाँ। और उस टाइम पे स्किप ही करनी, तो प्राणायाम से ही अपना बीपी नॉर्मल करना है। मैडम आपने जैसे बताया कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। अच्छा, अब आई एम ए पेशेंट, हमें कुछ मेडिसिन जो है खाना खाने से पहले लेनी होती है, कुछ बाद में लेनी होती है इमीडिएटली, उसको क्या करें, वो क्या करें? तो मैम आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद मेडिसिन? हाँ, नेचुरली, हाँ, यस, उसने बोला ये खाना खाने से पहले लेनी है, ये खाना खाने के बाद लेनी है। मैम सुनिए, डॉक्टर बोलते हैं कि खाना खाने के बाद लेनी है दवाई, लेकिन वो ये नहीं बोलते खाना खाने के तुरंत बाद लेनी है। खाना खाने के आप 1 घंटे बाद दवाई ले सकते हो। नहीं, तुरंत बाद लेनी नहीं, 10 मिनट बाद ली जाती है बेटा, 1 घंटे नहीं। ये तुम कह रही 2 घंटे बाद पानी पियो, 1 घंटे नहीं, कम से कम 15-10 मिनट बाद खानी पड़ती है डायबिटीज में। तो मैम वो हेल्थ बताई थी मैंने, जिनको हेल्थ इश्यूज हैं उनके लिए मैंने ये चीजें नहीं बताई थी। तो हम सारे पेशेंट्स ही हैं यहाँ पे, but everyone here will in any case have some problem or other. Very rarely will there be someone at this age who will not have any problems. But as we age, no matter how hard we try, something or the other will crop up. So उस हिसाब से जैसे सब लोग मेडिसिन वगैरह खाते ही हैं, कुछ खाने के बाद, कुछ खाने से पहले या रात को, तो ये मतलब हमेशा ये एक पैटर्न सबका रहेगा। अगर आप अपनी ग्रैंडमदर जब दवाई लेते हैं ना, तो दवाई ना सिर्फ उतने ही पानी से लेनी है जितनी आप दवाई लेते हो, है ना, एक्स्ट्रा पानी नहीं लेना है। अगर मतलब इससे वो बढ़ेगा नहीं हमारा, जैसे आपने बोला है अग्नि तत्व जो है उससे भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, उससे नहीं होगा, क्योंकि आप दवाई में ना सिर्फ थोड़ा पानी लो, ऐसा नहीं है कि गट करके पी गए सारा, सिर्फ मतलब क्वांटिटी कम ले, उतना ही पानी लो। हाँ, मतलब जिससे गोली आप दवाई ले सकते हो सिर्फ उतना। हाँ, वो ये क्लियर करना। तो कोई कहता है पानी पियो, कोई कहते हैं ना पियो, डॉक्टर कहते हैं दवाई लो, कैसे ले? नहीं, पानी देखो, अगर साइंस के अकॉर्डिंग आप साइंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो पानी नहीं चाहिए, मतलब 2 घंटे का, 1.25-2 घंटे का गैप होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं और आप दवाई ले रहे हो तो क्वांटिटी कम कर दो पानी की। क्योंकि बॉडी में हेल्थ इश्यूज हैं तो वो तो नीड हो गई, अगर आप नहीं लोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन उस कम क्वांटिटी में जब आप पानी लोगे ना, तो वो अग्नि आपकी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी, मतलब कम होगी लेकिन खत्म नहीं होगी। मतलब ग्लास भर के या ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा लेना। हाँ, ज्यादा नहीं ले सकते, थोड़ा सा ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।
Anybody else? हाँ जी, किसी और? या नीतू, you can continue. Hello? I think we have some any other questions. आप continue कर सकते हो. ठीक है मैम। हाँ जी सर, अब किसी और के तो क्वेश्चन नहीं है ना इसमें? नहीं, right now we don't have any questions. हम लोग प्राणायाम पे थे, ठीक है। प्राणायाम के बारे में मैंने आपको बताया कि हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंग लेने हैं। हर किसी को भस्त्रिका मैंने बताया, भस्त्रिका हर किसी को नहीं करना है। बीपी हाई वालों को तो बिल्कुल भी नहीं करना है भस्त्रिका, ठीक है। जिनका बीपी लो है इनफैक्ट वो कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। আমি করতে পারি, তুমি করতে পারো, তুমি ভস্ত্রিকা করবে না, ভস্ত্রিকা করতে পারবে না, তোমার ব্লাড প্রেশার হাই এর দিকে। समझ में आया? मैंने भस्त्रिका के बारे में बताया था। पर जैसे आपने बोला कपाल भारती, जिनको बीपी है, हाई बीपी है, या जिनको पेट की प्रॉब्लम हुई है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने बोला। ये फर्स्ट टाइम हमें पता चला। आई थिंक सो। क्या मैम? कि आपने बताया कि जो कपाल भारती है, जिनको हाई बीपी है या जिनकी कभी पेट की सर्जरी हुई है, पेट की सर्जरी ओके, पर जिनको हाई बीपी है वो भी कपाल भारती नहीं कर सकते। ये तो नहीं मैम, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उनका बीपी हाई है ना। अगर जब हम कपाल भाती करेंगे तो हमारी ब्रीथ एकदम कितनी तेज हो जाती है ना। जब तेज हमारी ब्रीथ होगी तो उससे फिर बीपी पे इफेक्ट आएगा। मुझे लगता है 60 साल के बाद कोई एक्सेप्शनल केस होगा जिसका बीपी हाई ना हो, कोई एक्सेप्शनल। आप जितने लोग हैं, आई थिंक सबको जरूर हाई बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, तो इसीलिए उसे धीरे धीरे करना चाहिए। हाँ, ये बात है कि धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कपाल भारती करनी नहीं चाहिए। अब देखिए, हम भस्त्रिका करते हैं तो भस्त्रिका का जो फ्लो है वो ये है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको ब्रीथ लिया, छोड़ दिया, ब्रीथ लिया, छोड़ दिया, तो आपको इस फ्लो में करना है। तो कर रहे हैं वो भ्रामरी है जो आवाज निकालते हैं कान से, मुंह से, वो भ्रामरी है, लेकिन जो मैंने करके दिखाया है वो भस्त्रिका है। हाँ, वो भस्त्रिका है, वो ठीक कह रही है। नहीं, वो पीछे वाले से बात नहीं, वो कान बंद करके, आंखें बंद करके जो आवाज निकालते हैं, भौरे की गुंजन जो निकालते हैं, वो आपका भ्रामरी है। यस मैडम, यस। हाँ जी, वो भ्रामरी है। बीपी वाले उसे कोई भी कर सकता है। भ्रामरी से तो सुना है कि ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है, मेमोरी भी ठीक होता है। हाँ, मैंने वही बोला कि उस प्राणायाम को आप किसी भी उसमें अपने हेल्थ इश्यूज में, कोई भी बीमारी में उसे आप कर सकते हो। भ्रामरी को अनुलोम विलोम आप कर सकते हो। आई थिंक साउंड स्लीप में भी हेल्प करता है। मैडम, ये मैं बता देता हूँ आपको, इट इज वेरी गुड टू अपना इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए, अपना स्टेमिना अच्छा करने के लिए, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे को 10 टाइम्स ज़्यादा मिलती है इस प्राणायाम को करने से। इससे हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन अच्छा होता है, हमारा जो फेफड़े होते हैं उनको आरोग्य लाभ मिलता है, सबल बनते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। और जितने कफ के रोग होते हैं, कफ के रोग मतलब गले के रोग, बलगम, नाक के रोग, जुकाम, नज़ला, पुराना नज़ला, दमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस और एलर्जी के रोग दूर होते हैं। और जो हम लोग जो हैं, जो जिनको कफ रोग लग जाते हैं मौसम के बदलने से, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, और उससे क्या है, ये जो कोरोना काल जो चल रहा है ना, और भी जो वायरसेस आ रही हैं, उससे हम बच सकते हैं। और इस प्राणायाम को करने से हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है, और इसको करने से ये कुंडलिनी जागरण में बहुत सहायक। थैंक यू सर। आप जो प्राणायाम करोगे वो तो सारे ही प्राणायाम से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अलग अलग रिजल्ट से सब प्राणायाम सबका अलग अलग रिजल्ट है। भ्रामरी से आपके गले, हाँ मिलेगा, लेकिन आपने जो बताया है ना कि वो बाकी प्राणायाम से भी मिलेगा, लेकिन भ्रामरी से आपके गले की जो मोस्टली जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत अच्छे से क्योर होती है भ्रामरी से, बाकी प्राणायाम से नहीं होती हैं। यस, करेक्ट, ठीक कह रही है मैम। और दूसरी बात ये कि जो प्राणायाम है ना, आप बोल रहे हो कि हमारे ऑर्गन्स को एक्टिव करेगा, वो बाकी प्राणायाम भी करेंगे एक्टिव।
लेकिन बाकी प्राणायाम आपके गले की जो प्रॉब्लम्स है मेरे उन्हें क्योर immune- नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा। गले के रोग तो हैं ही, वो इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा। आप जब बाकी प्राणायाम करेंगे ना तो सबका कनेक्शन आपके ब्रीथ से है, ठीक है। तो जब आप ब्रीथ लेते हो ना, प्रॉपर ब्रीथ कर लेते हो, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है जो सभी प्राणायाम में है। चलो, गो अहेड प्लीज। ठीक है। और जब आप डीप ब्रीथ करते हो ना, आप डीप ब्रीथ ही करो, आप कोई भी प्राणायाम मत करो, आप डीप ब्रीथ ही शुरू कर दो। दिन में 3-4 बार करनी, 10 से 15 बार, 15 से 20 बार, आप उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखोगे, मतलब विदाउट प्राणायाम। क्योंकि एक श्वास ही हमारा, ब्रीथ हमारी ऐसी है जो हमारी बॉडी के मतलब 50% बीमारियों को ठीक कर सकती है। सभी प्राणायाम का अपना अलग अलग रिजल्ट है, अलग अलग इफेक्ट है, अलग अलग फायदे हैं, तो सब अपनी जगह अच्छे हैं। जिसके पास जितना टाइम है उस हिसाब से अपना कर लो, लेकिन हाँ रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है इन चीजों से, ऐसा नहीं है। पर एक सीनियर सिटीजन को कितना करना चाहिए? मैम देखो, अगर उन्होंने, डिपेंड करता है वो योगा कब से कर रहे हैं, उनकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि 1 घंटे का टाइम ऐसा भी होता है कि आप जब शुरू से योगा कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी की इतनी स्ट्रेंथ 1 घंटे कंटिन्यूअसली कर सकते हो। देखो, व्हेन आई वाज यंग, मैं तो शीर्ष आसन तक पहुंच गई थी। अब कुछ भी नहीं होता क्योंकि इन द बिटवीन सब छोड़ दिया। हाँ, और अभी बॉडी जो है, शुगर भी है, बीपी भी है, तो नेचुरली बात है। तो आपने छोड़ दिया होगा। अगर आप कंटिन्यू आपसे छोटी थी, मतलब जो शीर्ष आसन पर पहुंचता है, इसका मतलब है कि वो काफी कुछ कर लेता है कि नहीं है? पर उसके बाद फिर वही होता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, गृहस्थी की जिम्मेवारियां आ जाती हैं, जॉब में होते हैं, है कि नहीं? आप समझ सकती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब इस समय हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए? अब इस चीज को छोड़े भी 40-50 साल हो गए। अब देखो, वो 40-50 साल हो गए तो उसका रिजल्ट तो, क्योंकि ये जो बीमारियां हमारे शरीर में होती है ना, वो एकदम से नहीं आती हैं, वो धीरे धीरे पहले से ही शरीर में होती है। मतलब थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, लोम विलोम कर, हाँ, मैंने बोला ना, लोम विलोम कर लिया, एक्सरसाइज है, इट्स ओके, चल रही है बॉडी। ऐसे इसीलिए तो चल रही है कि हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? इतनी बीमारियों में हम लोग अपने हाथ पांव चला रहे हैं, अपना काम अपने आप कर रहे हैं, सब कुछ एक्टिव रह रहे हैं। ये तो एक कोरोना पीरियड है ना, कि हमें एकदम हो गया कि आप बाहर नहीं निकलिए, उसके हिसाब से फिर भी एक्टिव है। और मैं वही कह रही हूँ कि एक आप इस उम्र में 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में मिनिमम कितना करना चाहिए? मैक्सिमम तो नो लिमिट। हाँ देखो, 15 से 20 मिनट। 15, वो यही मैं पूछना चाह रही, इतना जरूर करना चाहिए। और सेकंड, अभी तो कोरोना है, आप देखो बाहर निकल नहीं सकते, अभी तो लोम विलोम है, भ्रामरी है, ये सब कर सकते हैं ना हम लोग। तो मैं बताती हूँ, अनुलोम विलोम कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, अगर बीपी हाई की प्रॉब्लम आपको नहीं है या कोई ऐसा इश्यूज नहीं है कि आप कपालभाति कर। मॉर्निंग में हमारा योगा सेशन होता है, हम लोग हाफ एन आवर 40 मिनट्स करते हैं, हमारी बॉडी चलती है। उसके अलावा भी ये जो रेगुलर जो आप है कि डेली जो है, आपके कहने का मतलब है वो कितनी देर करते हैं? हाँ, तो वो आप एक प्राणायाम लगा लो, 15 से 20 मिनट कर लो आप एक प्राणायाम। इट्स एनफ, यस, है ना। और अब जैसे बैठे होते हो तो सूक्ष्म क्रियाएं कर, व्यायाम इतने सारे हैं आजकल, वो कर लो अपने, तो उनसे भी आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। हम मतलब 52 सूक्ष्म क्रियाएं हैं, तो आप उनमें से एटलीस्ट 20, 30, 15 कुछ तो कर ही सकते हो ना। मैं यही बोल रही हूँ कि मिनिमम कितना कर दे, मैक्सिमम तो ठीक है जितना बॉडी अलाउ करेगी, ठीक है ना। वो जिसकी जैसी हेल्थ है, कितना अलाउ करेगी वो मैक्सिमम कर लेगा, मिनिमम कोई कितना करेगा। हाँ, मिनिमम आपने डेली रूटीन के अलावा, ठीक, ये 15 से 20 मिनट। ये कुछ होता है। ये भ्रामरी कितना बार करना चाहिए? क्योंकि भ्रामरी तो आजकल बोल रहे हैं कि कोविड के लिए दिस इज अ मेडिसिन। भ्रामरी करने से कोविड के काफी वो होता है। तो मैम, आप जब प्राणायाम करोगे ना,
तो सभी प्राणायाम रिजल्ट देंगे, क्योंकि आजकल जो कोविड है ना वो आपके सीधा लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो आप प्राणायाम करोगे तो वो सीधा आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जब आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोविड असर आप पे होगा ही नहीं। प्लस आप योगा करते हो तो इम्यूनिटी आपकी ऑलरेडी पहले से ही है अच्छी, और अपनी लंग्स की स्ट्रेंथ बनाओ। जितना अच्छी लंग्स की स्ट्रेंथ होगी कुछ नहीं होगा, और कोविड कोई बड़ी बीमारी नहीं है। भामरी कितना बार करना चाहिए कम से कम? भामरी कितना बार कम से कम करना चाहिए? भ्रामरी के सेट होते हैं मैम। आपने डीप ब्रीथ किया कम से कम एक बार शुरुआत 11 से करो, 21, 31, 51 इसके ये सेट होते हैं। अच्छा। क्योंकि भ्रामरी आप 2 तरह से कर सकते हो। एक तो आपने ये चीजें बंद की, ठीक है, ब्रीथ करके कर सकते हो। सेकंड आप ये कर सकते हो, ये किया ये करके कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग हैं, ठीक है। जो मैंने ये ओम का गुंजन वाला बताया है, ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। जब आप अपना सारा वर्कआउट कर लेते हो और उसके लास्ट में आके आप अपना ये ओम का गुंजन कर लो 5 बार 11 बार, इससे आपको काफी मतलब आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ओके। भ्रामरी तो जितना जोर तेज ओम का उच्चारण होगा उतना लंग्स क्लियर होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब आप प्राणायाम करोगे ना तो प्रॉपर ब्रीथ आपकी बॉडी में जाएगा, ठीक है। और जब ब्रीथ आपकी बॉडी में जाएगा वो उतना ही आपकी बीमारी को क्योर करेगा, उतना ही आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बनाएगा। जब स्ट्रेंथ बनेगी तो आप ऑलरेडी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये वाले आसन तो बैठे बैठे भी कर सकते, कहीं भी बैठो लो विलोम शुरू कर दो। हाँ, बस खाने का ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, हाँ, बस खाने का गैप देख के जैसे बैठे लो विलोम शुरू कर। अब इस टाइम के बाद सभी लोगों का पेट खाली होता है मोस्टली, इस टाइम बैठ के अपना कर लो। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक स्पेशल टाइम निकालना है इनके लिए। रात में सोते हो, सोते टाइम बेड पे जाते हो, तो बेड पे जाते टाइम जो मैंने अभी ये ओम का उच्चारण बताया है, अपना 3 बार ये करके फिर सो लो, कितनी अच्छी नींद आती है। ब्राह्मणी का तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। ब्राह्मणी करने से हमारी जो नींद है ना साउंड स्लीप आती है, बीच में टूटती नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जैसे सोएंगे, जैसे नींद की प्रॉब्लम आती है तो कंटिन्यूअस नींद आ जाती है आपको। ये आप जब करते हो ना मैम तो रिजल्ट इनके मिलते ही मिलते हैं। अगर आप ठीक से अच्छे से उन्हें करते हो तो उनका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं वही ब्राह्मणी का तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस कि नींद बहुत गहरी आ जाती है एकदम से। हाँ, और सुबह माइंड फ्रेश एकदम रिलैक्स होकर उठते हो आप फ्रेश मूड के साथ। और भामरी में टंग को ऊपर में करना चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन है ना वो ब्रेन में भी जाता है, उसीलिए हम शांत हो जाते हैं, हमारा नींद अच्छा आता है। तो टंग के पोजीशन भी ऊपर में रखना चाहिए। हाँ, टंग, हाँ, अपनी जीभ को ऊपर लगाना चाहिए। ऊपर जीभ को लगा के डीप ब्रीथ करके ओम की उसके गुंजन के भोरे की गुंजन के साथ ब्रीथ को आउट करना है। क्योंकि जीभ ऊपर इसलिए लगाई जाती है मैम ताकि आपका ध्यान ना भटके। जब आंख बंद करके आप करते हो ना तो जीभ को ऊपर लगाने के लिए इसलिए बोला जाता है आपका ध्यान अपनी सांसों पे रहे और आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसे कर पाओ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Any more questions, ladies and gentlemen? So thank you so much, Neetu. Thank you, ma'am, for all the information that you have given and whatever queries that were there. Very good. So thank you so much for all that. And thank you. I hope this is helpful to everyone. And yes. And कोई जो queries थी and of course थोड़ा सा I was seeing that बहुत सारी Mr. Behel आपको बहुत सारी knowledge थी योगा की। Next time I'm going to get you here for a class, for a session. Sorry, not a class. Sorry, a session. On More TV. I did not know आप इतना ज़्यादा इसमें वो करते हैं.
So wonderful. You have a keen interest in this. So thank you so much once again, Neetu. So thank you so much for taking out time and being here with us. So right, ladies and gentlemen, with that we come to the end of today's session. And till then, take care, be careful, and take all the precautions. And thank you so much once again, Neetu, for being here. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much, everyone. Bye-bye and take care.